Good evening, everyone. Am I audible to you? Is my voice clear? Yes, thank you. Thanks a lot. Okay, great. Yeah. Now, let us start with today's lecture. In the last lecture, we started with the drainage system of India, that is the river system of India. Yes, and we completed the Himalayan drainage, that is Himalayan river system. So let's have a recap of that river system, and then we'll start with we'll continue with the river system of India. So I'm sharing my screen with you. Hold for a second. Okay. Let's have a recap of the last lecture, because this river system is important from answer point of view also and from map marking point of view also. So hold for a second. Let me set the slide first. Thank you. Okay. Now, in the last lecture, we learned about Himalayan drainage. And we learned about two major river systems in Himalayan drainage. That is, one is Ganga river system and one is Indus river system. So let's have a recap of Indus river system and Ganga river system. First is Indus river system, which is also called as Sindhu river. The Indus river originates near Mansarovar Lake and flows westwards toward India. ये हम लोगों ने पहला पढ़ा था. River चालू होता है मानसरोवर लेक से and it enters in India from west direction. The river flows through the region of Jammu Kashmir. India में कौन से एरिया में ये फ्लो होता है? जम्मू कश्मीर. And from Jammu Kashmir it flows into Pakistan, and from Pakistan it goes into Arabian Sea. This was the course of river Indus. ठीक है? Next is the tributaries of it which flows parallel to each other. Means these tributaries, they flow parallel to each other are Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. अभी इन ट्रिब्यूटरीज में सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलज, and this Satluj river also originates from or near Mansarovar Lake, and this river Satluj was responsible for formation of Punjab plains. ठीक है, पूरा पंजाब प्लेन्स ये रिवर सतलज और इसके ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है. अब रिवर सतलज है ना, इंडस को इंडिया में नहीं मिलता है. ट्रिब्यूटरी मतलब क्या? द स्मॉल रिवर्स मीटिंग बिग रिवर. सो सतलज रिवर डज नॉट मीट रिवर इंडस इन इंडिया, इट मीट्स रिवर इंडस इन पाकिस्तान. ये याद रखना. ठीक है, तो ये था रिवर इंडस का रिकैप. ओके, अब इसके बाद में आते हैं जो नेक्स्ट था वो है गंगा रिवर सिस्टम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, Ganga originates from Gangotri Glacier situated in Uttarakhand. वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. वहां से ये रिवर चालू होता है and it flows eastward. It's a east flowing river. Objective में पूछ सकते हैं, Ganga river is a dash flowing river. It is a east flowing river. Next is the Ganga river passes through the states. अभी ये मैं states क्यों बोल रहा हूँ? Because ये map marking पे आपको help करेगा. Ganga river flows through states like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. ठीक है, तो ये स्टेट से वो फ्लो होता है. नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा आर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड गोमती. ये उसके ट्रिब्यूटरीज है. अच्छा, इसमें से मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सा है रिवर गंगा का? इट इज यमुना. द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज यमुना, which originates from Yamunotri Glacier, again situated in Uttarakhand. अभी यमुना के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो पेनिनसुला से आते हैं. पेनिनसुला से आते हैं. इन ट्रिब्यूटरीज का नाम है चंबल, बेटवा, सोन एंड देयर आर मेनी मोर. ठीक है. नेक्स्ट इज the other major tributary of river Ganga is which flows from the northern part of Himalayas, that is greater Himalayas. greater Himalayas के ऊपर से फ्लो होता है, मतलब ये तिब्बत से चालू होता है. ठीक है. It flows parallel. It enters in India from Arunachal Pradesh. लेकिन इसको तिब्बत में एक नाम से बोलते हैं, इसका नाम है सैंगपो. क्या बोलते हैं? सैंगपो. ठीक है. जब ये इंडिया में एंटर करता है ना, तो इसके अलग अलग नाम है.
जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर उसको दिहांग बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ये रिवर के अलग अलग नाम है, लोकल नाम दिए गए। जैसे कि देखो ना, आपका एक नाम होता है, फिर आपके फैमिली मेंबर में कैसे आपकी मम्मी डैडी आपको एक नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको एक नाम से बुलाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी सिस्टर आपको एक नाम से बुलाती है। तो वैसे यहाँ पर लोकल नेम्स दिए रिवर ब्रह्मपुत्र को। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दे मीट ईच अदर एट द लोअर रीचेस ऑफ बांग्लादेश। मतलब ब्रह्मपुत्र गंगा का ट्रिब्यूटरी है, बट ये लोग दोनों इंडिया में नहीं मिलता है। दे मीट एट द लोअर रीचेस ऑफ बांग्लादेश। तो ये था रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिमालयन ड्रेनेज नाउ विल स्टार्ट विद पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर एरिया में जो रिवर्स है उसके बारे में बात करेंगे। अब पेनिनसुलर रिवर्स भी है ना, आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड। वन इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स व्हिच आर फ्लोइंग टू द वेस्ट, दैट इज इन अरेबियन सी, एंड वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर व्हिच आर फ्लोइंग टू ईस्ट, दैट इज इन बंगाल, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर हम बात करेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। किसके बीच में? वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, and are short in length but they are swift। और एक बार बताता हूं, दिस रिवर्स आर शॉर्ट इन, छोटे हैं, बट दे आर स्विफ्ट। स्विफ्ट बोलेगा तो फास्ट। क्यों स्विफ्ट है मालूम है? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स का जो स्लोप है ना, वहां पे स्टीप है, और स्टीप स्लोप होने की वजह से यहाँ पर के रिवर्स स्विफ्ट है। नेक्स्ट इज दिस रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। और हम लोग आगे जाके रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको पता चलेगा। ये था वेस्ट फ्लोइंग। अभी आते हैं ईस्ट फ्लोइंग में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज कवर्ड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर आप पेनिनसुला का मैप देखेंगे जो मैं आगे बताऊंगा, तो मेजर सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही है, ठीक है, एंड दे फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। द इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन द ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये मेजर रिवर्स है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स भी है, बट ये प्रोमिनेंट रिवर्स है, और ये सब रिवर्स ही आपको मैप मार्किंग में आने वाले हैं। नेक्स्ट इज महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। ये एक ही रिवर है इन सब में से जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, बाकी सब रिवर्स वेस्टर्न घाट से होते हैं, याद रखना। देयर इज ओनली वन रिवर। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नेम द रिवर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स एंड गोज इनटू और फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। द आंसर विल बी महानदी, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, विल लर्न अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स इन डिटेल। ओके, सबसे पहला है रिवर फ्लोइंग इनटू गल्फ ऑफ, दैट वो गुजरात जो है ना, गुजरात। आप लोग को एक क्वेश्चन आया रहेगा कि व्हाट गल्फ? गल्फ इज सराउंडेड बाय, ये सी का एक पार्ट है जो इनसे सराउंडेड है, इसको बोलते हैं गल्फ। तो गुजरात में गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ये दो गल्फ है वहां पे, याद रखना, ठीक है। कौन से दो गल्फ है? एक है गल्फ ऑफ खंभात एंड वन इज गल्फ ऑफ कच्छ। तो मेजर जो रिवर्स है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, हाँ, वेस्ट फ्लोइंग, दे मेजरली ड्रेन इनटू दिस गल्फ ऑफ खंभात। तो कौन से रिवर्स? अबाउट द रिवर्स व्हिच फ्लोज इन नर्मदा, साबरमती, लूनी ऑफ, आपको पता है, बाकी सब गल्फ में ड्रेन होता है। लूनी ऑफ, साबरमती, नर्मदा, तापी, ठीक है। अभी एक एक करके के बारे में जानते हैं। पहला नर्मदा स्लोली थ्रू द नर्मदा starts में
Extremely sorry, students. There was some technical glitch, I think. There is some technical glitches. Am I audible now? Am I audible now, everyone? Yeah. There was some technical problem, I think, because of which Nishant sir automatically got excluded from the meeting. I will make him the host again. Avnish, rename yourself or else I'll put you out. All right, Nishant sir, we can continue. Okay, sir. Am I audible, kids? Can you hear me? Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Acha, till what topic did you hear me? Till what topic? मतलब कहाँ तक आपको सुनाई दिया? Can anyone tell me which topic? Okay. We are talking about Narmada River. Great. So I'll just share my screen and I'll start the session again. Hold for a second. Sorry, what? 8 minutes. Wait. Okay, we are doing peninsular rivers, right? Peninsular rivers are further divided into west flowing rivers, east flowing rivers. West flowing rivers are short and swift. So your voice is lagging, sir. West... Okay, thank you. So we're talking about peninsular rivers. Rivers are further divided into rivers, east flowing rivers. Okay, west flowing rivers are short and swift. Why it is swift? Why it is fast? Because it flows from the steep slope of Western Ghats. ठीक है, इसके लिए वो swift है and short है. ठीक है, this river system exists in the state of Kerala, Karnataka, Maharashtra and southern part of Gujarat. ठीक है, अभी हमने दूसरा देखा रिवर्स में कवर पेनिनसुला. जब हम लोग कहेंगे तो दे कवर मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुला. The rivers are really I'll start my lecture again, so kindly hold. Sorry for the inconvenience. There is some technical issue due to rains. Okay, I'll start my lecture again. Thank you. So we had a quick recap of Himalayan drainage, and we also had a recap of Ganga river system and Indus river system. Today we are starting with a new topic, that is peninsular rivers. I'm sorry I am having this slide again because of the technical difficulty. A lot of students have not understood this topic. Okay, so I'll just have a quick explanation about this. Now, if you talk about peninsular rivers are further divided into west flowing rivers and east flowing rivers. Okay. Now, if you talk about west flowing rivers are short and swift. Short and swift मतलब कैसा है कि रिवर्स छोटा है और फास्ट है. क्यों फास्ट है मालूम है? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स का जो स्लोप है ना वो स्टीप है. बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप द रिवर्स आर फ्लोइंग फास्टर ओवर हियर. दूसरा चीज है, दिस रिवर्स system exist in the states of Kerala, Maharashtra, Karnataka and southern part of Gujarat. ठीक है, तो ये था
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अभी देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। अगर आप पेनिनसुला का मैप देखेंगे आगे, तो इसमें मेजर रिवर्स आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही मिलेंगे, ठीक है। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेजरली कवर्स द होल पेनिनसुला। अभी कौन से रिवर्स है इसमें मालूम है क्या? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इन सब में है ना एक ही रिवर है जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, वो है महानदी। बाकी के रिवर्स है ना, दे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि डैश रिवर originates from eastern ghats and flows into Bay of Bengal. The answer will be महानदी। बाकी के रिवर्स है ना सब वेस्टर्न घाट्स में फ्लो होते हैं, सॉरी वेस्टर्न घाट से चालू होके बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो ये था एक शॉर्ट समरी ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। The rivers flowing into Gulf of Khambat, that is Arabian Sea, means west flowing rivers के बारे में बात कर रहे हैं। अभी गल्फ ऑफ खंबाट किधर आता है मालूम है? इट कम्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। गल्फ का मतलब क्या है? आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज गल्फ सर? गल्फ इज नथिंग, इट इज एन इनलेट, इट इज अ पार्ट ऑफ सी विच इज सराउंडेड बाय लैंड, उसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। तो ना गुजरात में दो गल्फ है, एक है गल्फ ऑफ खंबाट और एक है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। कौन से दो गल्फ है? एक है गल्फ ऑफ खंबाट और एक है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ क्या? इट इज अ स्मॉल इनलेट और अ पार्ट ऑफ सी विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम मेजर साइड्स, उसको हम लोग गल्फ बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स जो हम लोग पढ़ने वाले, दे आर ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ द रिवर्स व्हिच फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबाट आर नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। आपको एक लूनी रिवर दिख रहा है ना वहां पे, लूनी रिवर है ना, ये रिवर है ना गल्फ ऑफ खंबाट में नहीं जाता है, इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ये याद रखना। लूनी रिवर फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। अब अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको ये रिवर्स दिख रहा है यहाँ पे। द रिवर्स आर मार्क्ड इन रेड, रिवर लूनी, रिवर साबरमती, रिवर माही, रिवर नर्मदा, रिवर तापी, ठीक है। अब हम लोग एक एक रिवर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रिवर नर्मदा। नर्मदा फ्लोज स्लोली थ्रू द रिफ्ट वैली। नाउ व्हाट इज द रिफ्ट वैली? वी हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड। रिफ्ट वैली इज अ रिजल्ट ऑफ स्लो मूवमेंट, और उसमें है ना ये नर्मदा रिवर फ्लो होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली। नाउ नर्मदा रिवर चालू कहां से होता है मालूम है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं ये स्टेट्स क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आपको जब मैप मार्किंग करेंगे तो अभी आपको ये याद रखना है। रिवर नर्मदा स्टार्ट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो। कौन सा प्लेटो? अमरकंटक प्लेटो। एंड इट फ्लोज फ्रॉम मध्य प्रदेश into Gujarat and then it flows into Gulf of Khambat and meets Arabian Sea. ये था नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन स्टेट ऑफ गुजरात, याद रखना। नेक्स्ट वन इज तापी, ये था नर्मदा रिवर। अभी नर्मदा रिवर के बाद में नेक्स्ट आता है तापी। नाउ तापी रिवर आल्सो फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली इन मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश से चालू होता है, बट एक दूसरे जगह से चालू होता है, उसका नाम है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तापी रिवर है ना चालू होता है मध्य प्रदेश से, बट इट आल्सो फ्लोज थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड देन गोज इनटू गुजरात। नर्मदा और तापी में डिफरेंस क्या मालूम है क्या? नर्मदा मध्य प्रदेश से सीधा गुजरात जा रहा है, बट तापी है ना चालू होता है मध्य प्रदेश से, but it flows into northern part of northern part of Maharashtra and then it goes into Gujarat, ठीक है। ये हो गया नर्मदा एंड तापी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिवर माही। माही flows through southeast, it flows from southeast through northeast to southwest. I'm sorry, the river flows from north east to southwest direction, and river Mahi starts again from Madhya Pradesh, then it flows into Rajasthan and then it goes into Gujarat, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो फ्लो का डायरेक्शन, इट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नेक्स्ट इज रिवर साबरमती, माही के बाद में। River Sabarmati collects its headwaters from southern slope of Aravalli ranges. Aravalli ranges याद, हमने Aravalli mountain पढ़ा था, the oldest fold mountain, starts from Delhi and extends till Gujarat.
तो इसका जो सदर्न स्लोप है ना, वहां से रिवर साबरमती को अपना पानी मिलता है। हेड वाटर मतलब क्या है कि जहां से उसको अपना पानी मिल रहा है। अभी रिवर का पानी कहां से आता है? रेनफॉल से आता है। सो व्हेन देयर इज रेनफॉल ओवर हियर, रिवर साबरमती गेट्स इट्स हेड वाटर्स। अच्छा, अभी रिवर साबरमती कौन से स्टेट से फ्लो होता है? इट फ्लोज इन राजस्थान and it goes into गुजरात। मतलब it starts from राजस्थान and it goes into गुजरात। ठीक है, और कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? नॉर्थ साउथ। माही कौन से डायरेक्शन में था? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ। ये है रिवर माही, सॉरी ये है रिवर साबरमती। आफ्टर साबरमती द नेक्स्ट वन इज रिवर लूनी। नाउ लूनी डज नॉट enter into Gulf of Kambhat, it flows into Gulf of Kutch. River Luni starts from Rajasthan and then it goes into Gujarat. ठीक है, ये जो रिवर लूनी है ना, ये एक ही रिवर है जो राजस्थान से चालू होके अरेबियन सी में ड्रेन होता है। बाकी जितने भी रिवर्स है ना राजस्थान में, चालू होके वहां पे इवोपरेट हो जाते हैं या इनलैंड ड्रेनेज मतलब जमीन के अंदर चले जाते हैं। दिस इज द ओनली वन रिवर विच स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान and it flows into Arabian Sea. But this river flows into Arabian Sea from Run of Kutch, that is Gulf of Kutch. ठीक है, to be precise. तो ये था river flowing into Gulf of Kambhat, that is west flowing rivers into Arabian Sea. कौन से rivers पढ़े हमने? नर्मदा, माही, तापी, साबरमती एंड लूनी। अब नेक्स्ट आते हैं rivers meeting the Bay of Bengal, that is east flowing rivers. I mean, most of the area of peninsula is drained by east flowing rivers, which meets Bay of Bengal. If you see this map carefully, you will see a lot of red lines, because majorly the peninsula part is covered by east flowing rivers, and the major rivers which flows from peninsula are Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज महानदी। मैंने सबसे पहले क्या बोला था? महानदी इज द ओनली रिवर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल। Mahanadi basin occupies the northeastern part of peninsula and it starts from Chhattisgarh and flows into Orissa. Mahanadi river is famous for Hirakud Dam. वहां पर सबसे बड़ा अर्दन डैम है हीराकुड डैम, उसके लिए महानदी बहुत फेमस है। महानदी में 2 डैम्स हैं। महानदी में क्यों 2 डैम्स है? बिकॉज इसका फ्लो इतना है कि इट कॉजेस फ्लड्स। टू कंट्रोल द फ्लड्स दे हैव बिल्ट 2 डैम्स ऑन रिवर महानदी। ठीक है, तो उसमें से एक है हीराकुड डैम। तो महानदी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वन इज river Godavari. Now river Godavari originates from eastern slopes of western ghats. गोदावरी एग्जैक्टली कहां चालू होता है मालूम है? महाराष्ट्र से, त्रिंबकेश्वर से। It starts near Trimbakeshwar in Maharashtra, then it flows into Telangana and then it goes into Andhra Pradesh. मतलब ये 3 स्टेट से जा रहा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। Now Godavari is an important river in Peninsula. उसको है ना पेनिनसुला का गंगा बोलते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेटो का गंगा बोलते हैं किसको? रिवर गोदावरी को। एंड रिवर गोदावरी is the second largest river system in India after river Ganga in terms of catchment area. Catchment area का मतलब क्या है? It's a place from where the river gets its water. जब रेनफॉल होता है ना, तो ये रेनफॉल कैसे एक जगह पे एक्यूमुलेट होता है, फिर वहां से वो फ्लो होता है और ये रिवर्स को मिलता है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है ना, गोदावरी का कैचमेंट एरिया, जहां पर पूरा पानी एक्यूमुलेट होता है, रेन वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट रेन वाटर, पूरा रेन वाटर वहां पे एक्यूमुलेट होता है और उसके बाद में वो फ्लो होके मेन रिवर को मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर गोदावरी, ठीक है, if you talk about Godavari, the catchment area of river Godavari is huge, the second largest after river Ganga. The tributaries of river Godavari are Pranhita, Indravati, Sabri, Manjira and Banganga. अभी ये रिवर्स है ना आपके, ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक पे मेंशन नहीं किया है, बट आपको ये जानना जरूरी है
because they can ask you for map marking. So the tributaries of river Godavari are Pranhita, Indravati, Sabri, Manjira and Manganga. ठीक है, and गोदावरी पे भी बहुत सारे डैम्स हैं. Okay, and Godavari is a source of irrigation as well as drinking water in many districts. ठीक है, ये हो गया रिवर गोदावरी. अभी गोदावरी के नीचे साउथ में और एक रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर कृष्णा. Krishna flows to the south of river Godavari. It originates from eastern slopes of Western Ghats. ये भी एक जगह से चालू होता है, that is महाबलेश्वर. आपने सबने सुना रहेगा, बहुत कॉमन है. River Krishna starts near Mahabaleshwar and it flows eastwards. It flows through states like Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh. ठीक है, कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. ये स्टेट से वो फ्लो होता है. नेक्स्ट बात करेंगे, द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा आर भीमा एंड तुंगभद्रा. याद रखना, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा इज भीमा एंड तुंगभद्रा. आपको उधर दिखता भी रहेगा, देखो वहां पे दो दिखाया है, देखो तुंगभद्रा भी दिख रहा है आपको और भीमा भी दिख रहा है. इट्स एविडेंट ओवर देयर. नेक्स्ट वन इज रिवर कावेरी. Now river Kaveri basin flows eastward to meet the Bay of Bengal. It flows through a state called Karnataka and Tamil Nadu. And it is the major river of river Karnataka and Tamil Nadu. There is a lot of dispute on water obtained from this river between these two states. If you remember, एक IPL भी cancel किया था यहाँ पे. There were no matches in Chennai, in Tamil Nadu, because of this dispute. Okay, so river Kaveri is a major source of irrigation in these two states. That is the reason. Okay, so हमने ये rivers पढ़े. कौन से rivers पढ़े? महानदी, कृष्णा, गोदावरी and कावेरी. इसमें से कौन सा river ईस्टर्न घाट से चालू होता है? That is river महानदी. Okay, so this was about rivers flowing into Bay of Bengal and rivers flowing into Arabian Sea. Now, I'll stop the presentation over here. If you have any doubts regarding any topic, you can ask me now. Okay, I'll solve the doubts. I'll just discuss the doubts one by one. Someone has asked me why there is a shortage of water in Rajasthan. बेटा, राजस्थान is a huge area और एक river से पूरा पानी का supply नहीं मिलेगा. और वहां पे कैसे है कि because of hot climate the evaporation is more. River है, but this river कैसे है कि in some part this rivers they are seasonal, तो कम हो जाता है उसका लेवल. समर सीजन में अगर बारिश नहीं होगा तो ये रिवर इवोपरेट होके पानी कम हो जाता है. इसके लिए राजस्थान में शॉर्टेज है वाटर का बिकॉज ऑफ दैट हॉट क्लाइमेट व्हिच दे हैव. ये साबरमती आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान. किसी ने मेरे को डाउट पूछा है. ये गल्फ का मैंने मीनिंग बताया था. व्हाट इज गल्फ? गल्फ मींस इट इज अ शॉर्ट इनलेट. इनलेट मतलब पानी सी का ही पानी है बट इट इज सराउंडेड बाय लैंड. ठीक है, तो एक छोटा सा इनलेट है. अगर आप देखेंगे, इफ यू गूगल इट यू विल गेट द पिक्चर आल्सो. ठीक है, तो गल्फ इज अ शॉर्ट इनलेट. इट इज अ पार्ट ऑफ सी व्हिच इज सराउंडेड बाय लैंड. ठीक है, Narmada river starts from Madhya Pradesh in Amarkantak plateau. Narmada river starts from Madhya Pradesh, MP. ऐसा river, who's this person is Ghatkopar में अथर्वा. There is no river which goes to east and west. ऐसा कोई river हो नहीं सकता है. I'm sorry. Headwater means river का source. मतलब रिवर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? हेड वाटर से आता है. हेड वाटर मतलब सोर्स ऑफ द रिवर. नो, नरीमन पॉइंट इज नॉट अ गल्फ.
इन योर एग्जाम्स, अभी जो नेक्स्ट वीक एग्जाम्स है ज्योग्राफी में, उसमें मैप्स नहीं आएंगे, डोंट वरी. River Luni starts from Rajasthan and flows into Gujarat, then it goes into Gulf of Cumberland, and then it goes into Arabian Sea. River Ghagar is in Rajasthan, but it does not flow into Gujarat. Catchment area is a place where the rainwater accumulates. Catchment area is a place where the rainwater accumulates and then it flows through the landscape and meets the river. मतलब रिवर को, गंगा रिवर को जो सॉरी गोदावरी रिवर को जो पानी मिलता है वो कैचमेंट एरिया से मिलता है. हर एक रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है. अच्छा, कावेरी का जो स्पेलिंग है KAVERI वो भी करेक्ट है, CAUVERY वो भी करेक्ट है. ठीक है, बट कॉमनली टेक्स्ट बुक में KAVRI लिखा है, तो उसको ही फॉलो करना. बैक वाटर्स के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी. यस, ड्रेनेज पार्ट आपको अभी ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ फिजियोग्राफी पार्ट आने वाला है ज्योग्राफी के एग्जाम में, सो डोंट वरी. Yes, majority of the river water is wasted. Yes, it is because of us. Don't. The major river of Maharashtra is Godavari, River Godavari. But northern part of Maharashtra gets water from River Tapi. होमवर्क में ग्रुप में डालूंगा. ठीक है, so don't worry. Okay, Dhruv sir. Hello, Dhruv sir. Yes, sir.